Hello student, welcome to online classes of MLP School Rajpura. I Priyanka ma'am. Today's session teach you subject computer. Today's my computer topic is how to working with MS Word. Means MS Word में आप किसी भी फाइल को open means create कैसे करेंगे, फिर open then save and how to copy paste etc. Okay. Now I will start my topic. Hello student, in this video I will tell you about MS Word basics. I tell you how to working with MS Word. Student, MS Word is an application software that is not a system software because it installed in your computer when you need it. Okay, मीन्स जब यूजर को इसकी नीड होती है तभी यूजर इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है. नाउ आई टेल यू व्हाट इज MS Word. MS Word is a word processing program that provide the facility for documentation. मीन्स किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करना, उसका कलर चेंज करना, उसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम MS Word का यूज करते हैं. It also used to create type letters, reports, newsletter and brochures also. It also used in making resume. Now I tell you uses or application where MS Word is used for official work. फर्स्ट है प्रिपेयरिंग लेटर्स, लेटर को प्रिपेयर करने के लिए, एप्लीकेशंस को प्रिपेयर करने के लिए, नोटिस, किसी कोई भी कंपनी नोटिस निकालती है या कोई भी स्कूल वगैरह में नोटिस वगैरह किस में एडिट किए जाते हैं, MS Word में. फैक्सिंग में यूज होता है और प्लीजिंग, लीगल प्लीजिंग में, मीटिंग एजेंडा में, कैलेंडर्स मेकिंग में एंड रिज्यूम और रिपोर्ट्स मेकिंग में. So student, MS Word basic part of MS Office. All the documentation work we can do in MS Word. Now I tell you how to start MS Word. The process of starting MS Word is that first you have to click on start button, then click on all programs and then click on MS Word. Okay, which version that install in your computer, MS Word 2007, 2010. Student, latest version of MS Word is 2009. 19. When you open MS Word, this type of windows show in your screen. Okay. Now I tell you working of Office button. When you open MS Word, then Office button show at the top of the side of title bar. Office button has various options: new, open, save, save as, print, print preview, prepare and exit. Okay. Here the working of each option is given. New is used for create a new document. Open when you save any file. Then reopen, we can use open option. Save to save a document. Save as to rename a document. Sometimes you want to change the name of your document or file, then you click on save as. Like print for printing, send for sending document, publishing के लिए and close for closing. Now I tell you various menu bar. मेन्यू बार्स को हम रिबन या टैब्स भी बोल सकते हैं. होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू आर द tabs. 3 types of tab are in MS Word. First one is standard tab, next one is contextual tab and third one is program tab. Program tab like जैसे आप print preview means ये किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए यूज किए जाते हैं. जैसे आपको प्रिंट आउट निकालना है तो पहले ये चेक करने के लिए कि प्रिंट आउट दिखेगा कैसे, तो इस प्रोग्राम टैब का यूज करते हैं. लाइक दैट पिक्चर्स टूल के लिए कॉन्टेक्चुअल और स्टैंडर्ड टैब ऑल को शो करने के लिए. नाउ आई टेल यू वेरियस बार शो इन द स्क्रीन. हियर एरो डिनोट द एवरीवन नेम. फर्स्ट टॉप मोस्ट होता है जो टाइटल बार होता है, उसके नीचे क्विक एक्सेस टूल बार होता है. मीन्स आपको कोई भी फंक्शन क्विकली करने के लिए आप इनमें से किसी भी टूल को सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बोल्ड तो देन क्लिक ऑन बी लाइक दैट. Now I tell you title bar. Title bar
टॉप मोस्ट बार होता है। आपसे क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है वेयर इज टाइटल बार लोकेटेड ऑन द स्क्रीन, तो एट द टॉप। इसमें 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड close button. If you want to close the document, you can click on cross button. If you minimize means close ना करके उसको minimize करते हैं तो minimize पे, और maximize means full screen. Now I tell you status bar. Status bar क्या होता है? horizontal area होता है और जो bottom में होता है documents में, ये show करता है जो आपने currently, जो आपका cursor है वो कहाँ पे है screen पे, ओके उसकी करंट लोकेशन ऑफ द कर्सर शो करता है। Here in the below you can see the current location of cursor. Next one is ruler. Ruler is used to increase or decrease the horizontally लाइंस होती है और ये इंक्रीज और डिक्रीज करती हैं किसी भी डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहाँ तक टाइप हो सकता है। नेक्स्ट वन इज स्क्रॉल बार. स्क्रॉल बार इज यूज टू मूव द डॉक्यूमेंट इन अप एंड डाउन. मीन्स आपको बहुत सारे 10 पेज की फाइल है तो अप और डाउन मूव करने के लिए आप स्क्रॉल बार का यूज करेंगे. नाउ आई टेल यू हाउ टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन MS Word. First you have to click the office button या file tab. Then you have to select the new document. उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, उनमें से आपको कौन सा वाला सेलेक्ट करना है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है. ओके, like that you can create a new document. And shortcut for to create a new document is Ctrl+N. Okay, now I tell you how to save a document in MS Word. For saving a document, first you have to select any document, new document. That is the first task. Sometime you write any document and power off your computer and your data will be lost. So you have to save firstly document. So click on office button and select the save. Like this menu bar dialog box is shown in the front of you. You have to write the name of the document and you can save. बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स के नाम में MS वर्ड में ऑलरेडी सेव होती है फाइल. नाउ हाउ टू ओपन ए डॉक्यूमेंट. व्हेन यू सेव ए फाइल एंड यू वांट टू रीओपन दैट फाइल, यू हैव टू क्लिक ऑन ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट. ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन डायलॉग बॉक्स. ओके, द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग इज लाइक दैट सेविंग. You have to click on office button, then click on save or save as. Like that you can use shortcut key Ctrl+O and you type the file name. Your file will be open. Now I tell you how to bold, italic and underline a text document. सबसे पहले बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है. Okay, you can do this work 2 types, by shortcut key and by directly take the icon from the quick access toolbar. Okay, shortcut key are like that. Bold के लिए हम Ctrl+B, italic के लिए Ctrl+L and underline के लिए Ctrl+U. Okay, now I tell you cut, copy and paste in MS Word. These are the icon that are showing quick access toolbar. Scissor for cut and double is copy and that is the paste, that box. So student, that is the basic edit function of cut, copy and paste. Because for making any document we need that function very many times. Means फर्स्ट कट एंड पेस्ट. सबसे पहले कट एंड पेस्ट कैसे करेंगे? अगर आपको कोई मैटर किसी प्लेस से आपको कट करना है तो यू कैन सेलेक्ट द मैटर, देन कट एंड देन पेस्ट. बट इज द डिफरेंट प्रोसेस फॉर कॉपी एंड पेस्ट. इन कॉपी पेस्ट फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट देन कॉपी. कॉपी और कट में ये डिफरेंस है. कॉपी करने से वो डॉक्यूमेंट वहां पे शो होगा और कट में वो डिलीट हो जाएगा.
Next one is changing the font size. To change the font size, we have to click on this type of dialog box to open in front of us. To use any shortcut to increase or decrease the font size, मीन्स हमें फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए ये शॉर्टकट गिवन है. जैसे कंट्रोल प्लस जो बिग ब्रैकेट है वो इंक्रीज करती हैं 1 पॉइंट जो आपका टेक्स्ट है उसको, और कंट्रोल प्लस जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो उसको डिक्रीज करती है. लाइक दैट दीज ऑप्शन आर गिवन. नेक्स्ट वन इज रिप्लेस. सर्च फॉर एंड रिप्लेस आर स्पेसिफाइड इन एक्टिव डॉक्यूमेंट टू रिप्लेस द टेक्स्ट. मीन ये सारे जो फंक्शन है वो किस में हो सकते हैं, जिस डॉक्यूमेंट में आप करंटली वर्किंग कर रहे हो. रिप्लेस मीन्स आपने कोई लेटर या कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है और पूरे डॉक्यूमेंट में वो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप उसकी करेक्ट स्पेलिंग के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं. और फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन से हमें ये पता चल जाएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो जो स्पेलिंग है वो नेक्स्ट कहाँ पे है. इस तरह का फाइंड या रिप्लेस के लिए डायलॉग बॉक्स आपके सामने स्क्रीन पर होगा. नेक्स्ट वन इज गो टू. गो टू मीन्स एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए, उस पर जाने के लिए हम गो टू का यूज करते हैं. शॉर्टकट की इसके लिए F5 भी यूज करते हैं समटाइम. नेक्स्ट वन इज your written assignment. Based on that video, I give you assignment. First one is what is MS Word. ये डिफाइन करना है आपको MS Word. मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि MS Word क्या होता है, एडिटिंग के लिए यूज होता है. नेक्स्ट वन इज MS Word इज ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये भी मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिकॉज सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जब आप किसी भी सिस्टम में विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑलरेडी उसमें आते हैं. बट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि हम इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं. नेक्स्ट वन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. इन तीनों फंक्शन के लिए हम कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए एंड कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए एंड कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल ऑप्शंस गिवन इन MS ऑफिस. जो बटन ऑफिस बटन होता है जब आप MS वर्ड को ओपन करते हैं तो जो ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं इसमें, सेव, न्यू, सेव, ओपन, सेव एज, प्रिपेयर, प्रिंट and close and send. So you have to write all the options. Okay, you can also write the working of that options. Where is title bar located on the computer screen? अब आपको बताना है कि टाइटल बार कहाँ पे लोकेटेड होता है स्क्रीन में. तो मैंने आपको बताया था टाइटल बार कहाँ होता है, टॉप में. और आपको शॉर्टकट की राइट करनी है. You have to write shortcut key for cut, copy, paste and open save file. Okay. Control plus C for cut like that. Control plus C for copy, Control plus X for cut and Control plus V for paste and open के लिए Control plus O, save के लिए Control plus S. Okay. Thank you. Have a nice day. Hello student, welcome to online classes of MLP School Rajpura. I Priyanka ma'am. Today's session teach you subject computer. Today's my computer topic is how to working with MS Word. Means MS Word में आप किसी भी फाइल को open means create कैसे करेंगे, फिर open then save and how to copy paste etc. Okay, now I will start my topic. Hello student. Today in GK classes 8th, I will tell you some plants that are marvelous and medicinal plants. So you have to see the video properly and learn all these type of plants name. Okay, you know very well GK is an important subject for every competitive exam and your SA1 exam. So you have to revise topic of
Topic is medicinal plant. Here some plants are given. You have to identify the name of that plant. The leaves of this plant has antibacterial property, and so they are used in making herbal soaps, toothpaste, etc. It also known as scared tree. Scared का मतलब होता है पवित्र. इसको एक पवित्र पौधा माना जाता है, और जो इसकी लीव्स होती हैं वो एक दवा का काम करती हैं, और इसका यूज हर्बल सोप्स और टूथपेस्ट के लिए किया जाता है. आंसर इज नीम. नेक्स्ट वन इज दिस प्लांट हैज पर्पल कलर्ड फ्लावर विद ऑरेंज स्टिग्मा. और जो स्टिग्मा होता है उसमें वेरी नाइस अरोमा होता है, और जो ये फ्लेवर के लिए और कलरिंग के लिए यूज किया जाता है. आंसर इज सेफ्रॉन. और समटाइम इसको मेडिसिन में यूज किया जाता है. सेफ्रॉन होता है केसर. The root of this plant gives us foul-smelling raisins. This raisins is known as हींग in हिंदी, और इसको हिंदी में हींग बोलते हैं, और ये एक एंटीसेप्टिक का काम करती है. आंसर इज एस्टोफोडिया. नेक्स्ट वन, it is an orchid with small pod-like capsule which have flavoring agent used to ice cream or confitants, that is vanilla. आइसक्रीम के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन मीन्स फ्लेवर देने के लिए. नेक्स्ट वन इज द बार्क ऑफ दिस ट्री possesses an alkaloid called quinine. It is used in treatment of malaria. के जो ट्रीटमेंट है उसमें यूज किया जाता है. आंसर इज किनकोना. नेक्स्ट वन है द लीव्स ऑफ दिस प्लांट possesses menthol which is an aromatic oil. The oil is used in cosmetic and medicines. ये होता है पीपरमेंट. पीपरमेंट होता है पुदीना. जो इसकी पत्तियां हैं वो मेंथोल को पोसेस करती है, मीन्स ग्रहण करती हैं, और जो एरोमेटिक ऑयल है वो इससे बनाया जाता है. आंसर इज peppermint. Next one, this is used in food as a coloring agent and also an antiseptic, healer of wounds. मीन्स जब घायल हो जाते हैं तो उसमें एक दवा का काम करती हैं, और फूड में ही कलर का काम करती हैं. तो इसका नाम है टर्मरिक मीन्स हल्दी. नेक्स्ट वन है द नेम ऑफ दिस एल्गे इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्लोरस मीनिंग ग्रीन. क्लोरस का मतलब होता है ग्रीन. एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं, यूज दिस एल्गे ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट एज रिच प्रोटीन फूड. और इसको एज ए रिच प्रोटीन फूड यूज किया जाता है, मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है. आंसर इज छिरोला. नेक्स्ट वन है marvelous plant. Those plants have thick fleshy stem which are covered with spines. During rainy day they can take up moisture and store it. They can reach up to a height of 15 meter. They are found in hot and dry regions. ठीक है, ये hot और dry places पे मिलते हैं, और इनकी हाइट 15 मीटर्स तक होती है. आंसर इज कैक्टस. इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं. नेक्स्ट वन इज these plants are capable to grow in salty water. They are tropical trees which grow in muddy shorelines, and shorelines होते हैं किनारे, and the river mouths. They have still roots, और इसकी जो रूट्स होती है वो बहुत ही टाइट होती हैं. लार्ज वेराइटी ऑफ सी क्रिएचर्स लीव देम. और बहुत से जो सी के एनिमल्स है वो इसमें रहते हैं, इनकी छाँव में या इनके आसपास रहते हैं. They act as a barrier and protect the land from tidal waves. मीन्स जो ये समुद्री लहरें चलती हैं उनसे धरती को बचाती हैं. आंसर इज मैंग्रोव्स. ओके, तो ये मार्वलेस मीन्स मार्वलेस प्लांट होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी लैंड को. नेक्स्ट वन इज flower of these trees are very tropical. They develop into round shaped fleshy structure which grow into a fruit. They can only be pollinated by teeny insect like wasp. wasp एक तरह का कीड़ा होता है जो, और ये फ्लावर्स होते हैं वो इसके टिपिकल होते हैं.
और इसका फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है। आंसर इज फिग ट्री। दोज ट्री प्रोड्यूस स्वीट सैप कॉल्ड मैपल सिरप। लीव्स ऑफ दिस टर्न इनटू beautiful red color before shedding. The leaf of this tree is national emblem of कनाडा। जो नेशनल एम्बलम है कनाडा का, उस पे इसकी लीव्स बनी हुई है। आंसर इज शुगर मैपल ट्री। नेक्स्ट वन, द लीव्स ऑफ दिस ट्री अरेंज लाइक द फैन लीफ स्टॉक ऑफ दिस ट्री कैन रिटेन ए लॉट ऑफ वाटर। ट्रेवलर्स कैन कट देम एंड सक द स्टोरीज। मीन्स इसके जो लीव्स जो स्टीम होता है उसको लोग चूसते हैं, मतलब ट्रेवलर्स ट्री ऑफ मेडास्कर। नेक्स्ट, ऑफ द प्लांट के रिजेंबल लेग्स, ह्यूमन के लेग की तरह इकट्ठी हो जाती हैं वो, और इसको मैजिकल प्लांट्स भी बोलते हैं। आंसर इज मैंडार प्लांट। ओके, नाउ आई टेल यू सम डायनासोर्स दैट आर इन कैटेगरी ऑफ जोरासिक। 2 कैटेगरी होती हैं, एक जोरासिक होती है, एक ट्रासिक होती है। ट्राइसिक होती है मीन्स जो जोरासिक है वो इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। स्टूडेंट, यू नो जोरासिक पार्क इज ए मूवी, सो यू हैव टू सी दैट मूवी। दैट टॉपिक इज बेस्ड ऑन दैट। मीन्स इसमें जो डायनासोर है उनकी वेरियस टाइप ऑफ कैटेगरीज बताई गई हैं। फर्स्ट वन इज हर्बीवर्स डायनासोर, जो प्लांट ईटिंग मीन्स जो प्लांट ईट करते हैं और बहुत ही बड़ा साइज होता है, और जो उनकी लंबी गर्दन है लॉन्ग नेक हेल्प करती है उनको ट्री के टॉप तक पहुंचने में। नेक्स्ट इज कार्निवोरस। दीज डायनासोर्स ऑल्सो लार्ज और पावरफुल होते हैं। हिंड का मतलब होता है जो पीछे के लेग्स होते हैं वो, और क्लाउड फिट मीन्स जो चपटा उसका पैर होता है और उसके पंजे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जो मांस को भी फाड़ देते हैं। नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट। लार्जेस्ट जो डायनासोर्स है वो 27 मीटर लॉन्ग होते हैं और वेट 20,000 kg तक होता है, और 8 मीटर्स लॉन्ग नेक होती है, 40 मीटर लॉन्ग टेल होती है। लाइक एलिफेंट इफ 5 टोड फिट होते हैं इनके। ओके, नेक्स्ट वन इज हैवीएस्ट डायनासोर्स। हैवीएस्ट मीन्स जो बहुत ही भारी होते हैं, 25 मीटर लॉन्ग होते हैं, 13 मीटर टॉल होते हैं, और उनका वेट अप टू 80,000 तक हो सकता है और होता है मीन्स। और जो फर्स्ट जो इसका कैटेगरी है वो कहाँ मिली थी, यूएसए में 1900 में। नेक्स्ट वन है स्मॉलेस्ट डायनासोर्स। ये साइज में छोटे होते हैं और इस माउस लिजार्ड मीन्स ये छिपकली और एक चूहे की तरह टाइप में होते हैं, और ये जस्ट 20 सेंटीमीटर के लॉन्ग होते हैं ये, और टीनी डायनासोर्स बोला जाता है इनको। और जो ये 70 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर में इनका जो पार्ट है वो डिवाइड होता है, मीन्स इनका जो शरीर होता है आगे और पीछे में। नेक्स्ट वन इज आर्मर प्लेटेड डायनासोर्स। ये भी डायनासोर्स की एक अलग से कैटेगरी है। नाउ आई टेल यू रिटन असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 3, 4 एंड 5। हेयर सम मेडिसिन। फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 में है, यू हैव टू राइट द 5 मेडिसिनल प्लांट। विच प्लांट इज यूज एज फूड एज कलरिंग एजेंट। जो फूड के लिए यूज होता है, फूड में कलर के लिए यूज होता है, और एक दवा का भी काम करता है। नेक्स्ट वन इज फ्लेवरिंग एजेंट है यूज इन एन आइसक्रीम। ये आइसक्रीम में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, द प्लांट्स यूज टू मेक हर्बल सोप्स। और टूथपेस्ट बनाने के लिए जो प्लांट्स यूज किया जाता है। और नेक्स्ट वन इज द प्लांट्स लीव्स यूज फॉर प्रोसेसेज मेंथोल विच इज एन एरोमेटिक ऑयल, जो एक एरोमेटिक ऑयल का भी वर्क करता है। तो स्टूडेंट, यू हैव टू राइट दैट असाइनमेंट इन योर जीके नोटबुक एंड विद आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 4, राइट द नेम ऑफ 3 मार्वेलस प्लांट्स। आपको 3 मार्वेलस प्लांट बताने हैं। नेक्स्ट वन है विच प्लांट इज नोन एज मैजिकल प्लांट। मैजिकल प्लांट्स के नाम मैजिकल प्लांट्स होता है। विच ट्री लीव्स अरेंज लाइक ए फैन। एंड नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 5 असाइनमेंट,
आपको डायनासोर्स की कैटेगरी राइट करनी, कौन कौन सी कैटेगरी होती है डायनासोर्स की, हाइट और वेट लार्जेस्ट डायनासोर्स का एंड हैवीएस्ट डायनासोर्स का। ओके, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ जुरासिक पार्क डायनासोर। ये आपके जो साइड में बॉक्स गिवन है उसमें ये राइट किया गया है कि क्या इसका टाइम पीरियड होता है। सो स्टूडेंट, यू हैव टू राइट दिस असाइनमेंट फॉर योर S7 एग्जाम। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पार्ट 1 से लेके 5 तक का रिवीजन करेंगे। तो हमने पहले पार्ट क्या किया, लघुत्तरीय तक कर लिए थे। अब है हमारे लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें, सूर्योदय होते ही कलियां और पुष्प क्या करते हैं। तो सूर्योदय होते ही कलियां और पुष्प खुश हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे वे सूर्य के स्वागत में इसका रास्ता सजा रहे हो। जब सूर्योदय होता है तो कलियां और पुष्प खिल जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो उसके स्वागत के लिए उसके रास्ते पर बिछ गए हो। दूसरा प्रश्न है, बादलों ने स्वर्ण की पोशाकधारी से क्या भाव है। तो बादलों ने स्वर्ण की पोशाकधारी से भाव है कि जब सूर्य की किरणें बादलों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे बादलों ने सोने की पोशाक को धारण कर रखा हो या पहन रखा हो। कि जब सूर्य की किरणें बादलों पर पड़ती हैं तो सुनहरे रंग के हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सोने की सी पोशाक पहन रखी हो। अगला प्रश्न है तीसरा, सूर्योदय के समय पेड़ों पर बैठे पक्षी क्या करते हैं। इस उत्तर है इसका, सूर्योदय के समय पेड़ों पर बैठे पक्षी सूर्य की किरणों की शोभा को देखकर यानी उनकी सुंदरता को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं और वो खुश होकर चहचहा रहे हैं। प्रसन्नता में क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं और चहचहा रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो सूर्य का यशगान कर रहे हैं यानी कि सूर्य का गुणगान कर रहे हो। प्रश्न 4 है, तारे सूर्योदय के बाद दिखाई क्यों नहीं देते। उत्तर इसका, कविता में बताया गया है कि जब सूर्योदय होता है तो सभी तारे भाग जाते हैं। जब सूर्योदय होता है तो सभी तारे भाग जाते हैं या वे लुप्त हो जाते हैं। सूर्योदय के बाद में तारे हैं जो लुप्त हो जाते हैं और सूर्य रात के अंधकार को मिटा देता है, इसलिए तारे सूर्योदय के बाद में दिखाई नहीं देते। अब हमारे देव प्रश्न उत्तर, जिसमें पहला है, सूर्य अपनी विजय पर खुशी से क्यों नहीं उछल सका। सूर्य अपनी विजय पर खुशी से क्यों नहीं उछल सका। इसका उत्तर है कि इस कविता के माध्यम से कवि ने सूर्य के प्रतीक के माध्यम से समय की परिवर्तनशीलता को दर्शाया है। कि सूर्य के माध्यम से क्या दिखाया है, परिवर्तनशीलता को, कि हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। इस परिवर्तन इस संसार का हटा सकते हैं कि परिवर्तन इस संसार में होता ही है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, कि जिस प्रकार से जब सूर्योदय होता है तो वो रात के अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। उसी प्रकार के मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। इसीलिए सूर्य अपनी विजय को खुशी से उछल नहीं सका, क्योंकि उसे पता है कि फिर से रात आएगी। आगे है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो पंक्ति दे रखी है, विहग बंदी और विचारण कर रहे कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान सारी फौजों की, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। तो इसका भाव सौंदर्य है, इस पंक्ति में आ रही रवि की सवारी नामक कविता से की गई है, जिसकी कवि है हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पर कवि ने सूर्य की प्रशंसा का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि ने क्या किया है, सूर्य की प्रशंसा का वर्णन किया है। प्रातःकाल जब सूर्य का उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। कि जब सूर्य उदय होता है तो सभी को रात के अंधकार से मुक्ति मिलती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई राजा है जो स्वर्ण रथ पर बैठकर सवार होकर आ रहा हो। राजा क्या है, रथ पर बैठकर आ रहा है और अपने राजा को देखकर जो पक्षी रूपी चारण है यानी जो राजा का गुणगान करते हैं, वो पक्षी सभी उसकी प्रशंसा में कीर्ति गायन कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। अगली पंक्ति हमारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचर में स्वर्ण की पोशाक भारी, आ रही रवि की सवारी। तो इस पंक्ति का भाव है, यहाँ कवि ने सूर्य के आगमन का मनोहारी वर्णन किया। यहाँ पर कवि ने जो सूर्योदय हुआ है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जब सूर्योदय
उनके आगमन पर फूल हैं, जो कलियां हैं, वो उनके रास्ते में बिछ गए हैं और बादल है उन्होंने सोने की पोशाक धारण कर ली है। अब है पार्ट 2, चतुर्सुगा। इस पार्ट में क्या है, चतुर्सुगा यानी तोता। कि एक चतुर तोता होता है, एक निर्धन व्यक्ति होता है, उसके पास में तोता होता है और वो उसकी निर्धन व्यक्ति की जो पत्नी होती है उसकी सारी सच्चाई उसको बता देता है। इसी कारण से क्या करती है, निर्धन व्यक्ति की पत्नी उस तोते को घर से बाहर निकलवा देती है और वो तोता एक राजा खरीदता है और फिर बाद में वो राजा का गुणगान करता है और राजा की पत्नी की भी वो बुराई करता है, लेकिन अंत में राजा अपनी जो एक राजकुमारी होती है जो तोतों को मोती दान करती है, उसके से राजा की शादी हो जाती है और वो आराम से सुखी सुखी रहने लग जाते हैं। तो इसके अंदर भाव क्या है, इसमें चतुर्सुगे की चतुरता और गुणों का वर्णन करते हुए उसकी स्वामी भक्ति तथा अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा किस तरह से करनी है, इसका अत्यंत रोचक वर्णन किया गया है। ये प्रस्तुत कथा है जो वास्तव में कश्मीर घाटी में प्रचलित अनेक लोक कथाओं में से एक है। अब हमारे इसमें मौखिक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, सारा हलवा कौन खा गई? सारा हलवा कौन खा जाती है? निर्धन व्यक्ति की पत्नी। सारा हलवा कौन खा जाती है? निर्धन व्यक्ति की पत्नी। निर्धन व्यक्ति सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, तोते से या पत्नी से? निर्धन व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, तोते से। तीसरा प्रश्न, तोते की मालिक ने तोते को राजा के हाथों कितनी राशि में बेचा थी? तोते का जो मालिक था उसने तोते को कितने रुपए में बेचा था? 10,000 रुपए। कितने में बेचा? 10,000 रुपए में। चौथा प्रश्न, पुराने मालिक से मिलने के लिए तोते ने कितने सप्ताह का बहाना बनाकर मृत्युदंड स्थगित कर दिया? तो तोते ने कितने सप्ताह का बहाना बनाया था? कितने सप्ताह का? 1 सप्ताह का। कितने का? 1 सप्ताह का। आगे है सही विकल्प के प्रश्न। सही विकल्प में पहला प्रश्न है, निर्धन व्यक्ति की पत्नी के तोते की शत्रु बनने का क्या कारण था? कि जो निर्धन व्यक्ति की पत्नी थी वो तोते की शत्रु क्यों बन गई थी? क्या कारण था उसका? सत्यवादन, झूठा आरोप या दोनों में से कोई नहीं। कि तोते ने क्या किया था? सत्यवादन, कि उसने निर्धन व्यक्ति को सब कुछ सच बता दिया था। तो उत्तर आएगा इसमें सत्यवादन। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने तोते को किसके योग्य समझा? जब प्रधानमंत्री तोता खरीदने लगा तो उसने उस तोते को किसके योग्य समझा? रानी के लिए, राजा के लिए या फिर युवराज के लिए? क्या उत्तर आएगा इसका? राजा के लिए। तीसरा प्रश्न, राजा की रानी की आत्महत्या करने का क्या कारण था? कि जो राजा की पहली रानी थी उसने आत्महत्या किस कारण से की थी? तोते से प्रेम के कारण, दूसरा विवाह या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो उसका कारण क्या था? दूसरा विवाह। चौथा प्रश्न, राजा ने एक नया जीवन प्रारंभ किया। राजा ने एक नया जीवन प्रारंभ किया नई रानी के साथ में, तोते के साथ में या फिर दोनों में से कोई नहीं। इसके साथ में क्या था उन्होंने? नई रानी के साथ में। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें एक या दो शब्दों में देने हैं। तो पहला प्रश्न है, निर्धन व्यक्ति ने पत्नी को कौन सा व्यंजन बनाने के लिए कहा? निर्धन व्यक्ति जब जाता है तो अपनी पत्नी से क्या बनाने के लिए कहता है? हलवा। तो क्या बनाने के लिए बोला? हलवा। निर्धन व्यक्ति को उसकी पत्नी की झूठ के विषय में किसने बताया था? निर्धन व्यक्ति था, उसको उसकी पत्नी की झूठ के विषय में किसने बताया था? किसने कहा था कि वो हलवा कौन खाते? बिल्ली। तो किसने बताया? तोते ने। निर्धन व्यक्ति का तोता किसने खरीदा? निर्धन व्यक्ति का तोता किसने खरीदा था? राजा ने। निर्धन व्यक्ति का तोता किसने खरीदा? राजा ने। चौथा प्रश्न है, रानी के रूप के विषय में तोते ने क्या शब्द प्रयुक्त किया? कि जब रानी तोते से पूछती है उसके बारे में तो उसने क्या कहा? तो उसने कहा अत्यंत कुरूप। उत्तर आएगा कि रानी के रूप के विषय में तोते ने अत्यंत कुरूप शब्द का प्रयुक्त किया है। उन्होंने उसे अत्यंत कुरूप कहा तोते ने। पांचवा प्रश्न, द्वीप की राजकुमारी तोते को क्या खिलाती? जो द्वीप पे राजकुमारी थी जहाँ पर तोता उड़ता हुआ जाता है वो तोतों को क्या खिलाती थी? मोती। तो द्वीप की राजकुमारी
दिया, क्या दंड दिया? मृत्युदंड। अगला प्रश्न, तोते ने 7 दिन का समय लेने के लिए राजा को क्या कारण बताया? कि जब तोता 7 दिन का समय मांगता है तो उसने क्या कारण बताया? उसने कारण बताया कि उसे अपने पुराने मालिक से मिलना है, कि उसने 1 सप्ताह का समय मांगा ताकि वो अपने मालिक से मिल सके। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ में है नीचे दी गई पंक्ति किसके द्वारा और कब कही गई और क्यों कही गई? जो नीचे पंक्ति दी गई है वो आपको बतानी है कि किसके द्वारा कही गई, क्यों कही गई और कब कही गई। आपके लिए रखा हलवा बिल्ली खा गई, यह पंक्ति किसने कही? तो यह है कि जब निर्धन व्यक्ति घर लौटा तब यह पंक्ति उसकी पत्नी द्वारा कही गई। क्यों कही गई? क्योंकि निर्धन व्यक्ति की पत्नी सारा हलवा खा गई थी, इसलिए उसने ये पंक्तियां कही। अगली पंक्ति है हलवा उसने स्वयं खाया था, बिल्ली ने नहीं, ये पंक्ति किसने कही थी? तोते ने। तो जब निर्धन व्यक्ति अपने तोते के पास गया तब तोते ने कहा कि हलवा उसने स्वयं यानी मालकिन ने खाया है, बिल्ली ने नहीं। तो ये पंक्ति कही तोते ने। और कब कही? जब निर्धन व्यक्ति उसके पास जाता है। और क्यों कही? क्योंकि उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह अपने मालिक से झूठ नहीं बोलता था, क्योंकि तोता है वो अपने मालिक से कभी भी झूठ नहीं बोलता था, इसीलिए उसने ये पंक्तियां कही। तीसरी पंक्ति है तोता तो हमारे महाराज के योग्य है, तोता तो हमारे महाराज के योग्य है, ये पंक्ति कब कही गई? जब निर्धन व्यक्ति है जो तोता बेचने जाता है तब प्रधानमंत्री कहता है, जब कोतवाल ने प्रधानमंत्री के सामने तोते की प्रशंसा की तब प्रधानमंत्री ने यह पंक्ति कही क्योंकि तोता बहुत ही चतुर था। और क्यों कही? क्योंकि तोता था वो बहुत ही चतुर था। चौथी पंक्ति है आपको अत्यंत क्रूप है, आपको अत्यंत क्रूप है, ये किसने कहा? तोते ने। तो यह पंक्ति तोते के द्वारा कब कही गई? जब कही गई जब रानी तोते से अपने विषय में प्रश्न पूछा। जब रानी ने तोते से अपने विषय में प्रश्न पूछा तब तोते ने कहा कि आपको अत्यंत क्रूप है। और इसका कारण क्या था? क्योंकि रानी सुंदर नहीं थी और इसीलिए तोते ने ऐसा कहा, क्योंकि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था। अगला, कृपया इस निमंत्रण को अस्वीकार न करें, कृपया इस निमंत्रण को अस्वीकार न करें, ये किसके द्वारा कही गई? जब तोता उनके दूसरे द्वीप में चला जाता है तब जब राजकुमारी तोते के स्वामी से मिलना चाहती थी, जब राजकुमारी है वो तोते के स्वामी से मिलना चाहती थी तब यह पंक्ति राजकुमारी के पिता ने एक पत्र में लिखी थी और कहा कि कृपया इस निमंत्रण को अस्वीकार न करें, अन्यथा मेरी पुत्री का दिल टूट जाएगा, वरना मेरी पुत्री का दिल वो टूट जाएगा। दूसरा प्रश्न है इसमें राजकुमारी और तोते के मध्य हुए संवाद को संक्षेप में लिखिए। जो राजकुमारी और तोते के बीच में जो बातें हुई थी उन्हें हमें संक्षेप यानी छोटे रूप में बताना है कि उनके बीच में क्या बातें हुई। तो एक दिन तोता राजकुमारी से बोला कि आप बहुत सुंदर और दयालु है। राजकुमारी से तोता बोला कि आप बहुत ही सुंदर और दयालु है। मेरा राजा भी प्रतिदिन निर्धनों को मोती दान देता है, और मेरा राजा है वो भी प्रतिदिन निर्धनों को मोती दान देता है। आप उनकी रानी बनने के योग्य हैं और आप उनकी रानी बनने के योग्य हैं। राजकुमारी ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और राजकुमारी ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो उनके पिता ने एक पत्र तोते के स्वामी के पास में भेज दिया। तो जो राजकुमारी के पिता थे उन्होंने एक पत्र लिख के राजा के पास में भेज दिया। अगला प्रश्न है तोते ने पहली रानी के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया? विस्तार पूर्वक लिखिए। तोते ने पहली रानी के साथ में दुर्व्यवहार क्यों किया, किसे क्रूर क्यों कहा? तो तोता बहुत ही बातूनी और चतुर था, तोता था वो बहुत बातूनी और चतुर था, वह सभी को अपनी बातों से आनंदित करता था। एक दिन रानी ने तोते से अपने विषय में प्रश्न किया, तो एक दिन रानी ने तोते से अपने विषय में प्रश्न किया कि मैं कैसे दिखती हूँ? तो तोता बिना रुके बोल उठा कि आप तो अत्यंत क्रूर है और हमारे राजा के योग्य नहीं है। तीसरा प्रश्न, निर्धन व्यक्ति ने तोते को क्यों बेच दिया? निर्धन व्यक्ति था, उसने तोते को क्यों बेच दिया, इसका क्या कारण था? तो निर्धन व्यक्ति अपने तोते से बहुत ही प्रेम करता था। एक दिन तोते ने अपनी मालकिन का सच निर्धन व्यक्ति को बता दिया था, लेकिन एक दिन तोते ने, क्योंकि वो सच बोलता था हमेशा और मालिक का वफादार था, इसीलिए वो एक दिन अपने मालिक को उसकी मालकिन का सच बता दिया। उसके बाद निर्धन व्यक्ति की पत्नी ने तोते से घृणा और क्रोध करने लग गई और उसी दिन के बाद में जो निर्धन व्यक्ति की पत्नी थी वो तोते से घृणा करने लग गई और उसे पीछा छुड़ाने के लिए अपने पति से कहा कि आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। पत्नी से अलग होना सामाजिक निंदा का विषय था, इसी कारण निर्धन व्यक्ति ने तोते को बेच दिया।
उड़ने वाले जीव पृथ्वी पर थे या नहीं थे। पक्षियों संबंधित कुछ अन्य तथ्यों पर भी इसके अंदर प्रकाश डाला गया है। तो इस पाठ में क्या बताया गया है? पक्षियों के उद् विकास के बारे में। तो मौखिक प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, आविष्कार की जननी किसे कहा गया है? आविष्कार की जननी किसे कहा गया है? आवश्यकता को। आवश्यकता को आविष्कार की जननी कहा गया है। दूसरा प्रश्न, कौन से जीव हम अर्ध पक्षी भी कह सकते हैं? कौन से जीव को हम अर्ध पक्षी भी कह सकते हैं? तो कौन से जीव है? टेरोसोर। तीसरा प्रश्न, उड़ने वाले छोटे से पक्षी को लगभग कितने भोजन की आवश्यकता होती है? जो उड़ने वाला छोटा सा जीव है उसको कितने भोजन की आवश्यकता होती है? तो उड़ने वाले छोटे से पक्षी को लगभग घरेलू मुर्गी से लगभग 8 गुना भोजन की आवश्यकता होती है। यानी जो घरेलू मुर्गी है उससे लगभग 8 गुना भोजन की आवश्यकता उसको होती है उड़ने वाले छोटे से जीव को। अगला प्रश्न, पक्षियों के पंख कितने प्रकार के होते हैं? जो पक्षी हैं उनके पंख कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो पक्षियों के पंख 2 प्रकार के होते हैं। आगे हमारे सही विकल्प के प्रश्न। पहला प्रश्न, प्राचीन जीवों के अवशेषों से पता नहीं चलता बल्कि ये जो प्राचीन जीवों के अवशेष हैं उनके हड्डियां हैं उनसे हमें किस चीज के बारे में पता नहीं चलता? उनके निवास के बारे में, त्वचा के रंग के बारे में या भोजन के बारे में? उत्तर आएगा त्वचा के रंग के बारे में। कि प्राचीन जीवों के अवशेषों से त्वचा के रंग के बारे में पता नहीं चलता। सर्वप्रथम उड़ने में समर्थ होने वाले जीव थे। जो सर्वप्रथम उड़ने वाले जीव थे वो कौन थे? पक्षी, मछलियां या फिर कीट पतंग? तो क्या आएगा इसमें? कीट पतंग। तीसरा, शतुरमुर्ग ऐसा पक्षी है जो उड़ने में समर्थ है, असमर्थ है या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो शतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो उड़ने में असमर्थ है। चौथा प्रश्न, पक्षियों की चोंचों के विकास का मुख्य आधार है। जो पक्षी है उनकी चोंचों का विकास किस कारण से हुआ? भोजन प्राप्ति के लिए, उड़ने की क्षमता के लिए या शत्रु से भिड़ने के लिए? तो उत्तर आएगा भोजन प्राप्ति के लिए। कि पक्षियों की चोंचों का विकास भोजन प्राप्ति के लिए का उनका मुख्य आधार था। अब है अति लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में दीजिए। हमें 1 या 2 शब्दों में उत्तर देने थे। प्राचीन जीवों की जानकारी कहाँ से मिलती है? जो प्राचीन जीव है उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो प्राचीन जीवों की जानकारी उनके अवशेषों से मिलती है। प्राचीन जीवों की जानकारी उनके अवशेषों से मिलती है। दूसरा प्रश्न, किसी जीव के अवशेषों से क्या पता नहीं चल पाता? किसी जीव के जो अवशेष है उनसे जीवों के बारे में क्या नहीं पता चलता? तो उत्तर आएगा किसी जीव के अवशेषों से उस जीव के रंग का पता नहीं चलता। कि जीव किस रंग का था इस चीज का पता नहीं चलता। उसके शरीर पर दाग धब्बे थे या नहीं थे, ये सारी चीजें पता नहीं चलती। तीसरा प्रश्न, धरती पर उड़ने वाले सर्वप्रथम जीव कौन से थे? कि धरती पर उड़ने वाले सर्वप्रथम जीव कौन से थे? तो धरती पर उड़ने वाले सर्वप्रथम जीव थे कीट पतंगे। कौन थे? कीट पतंगे। अगला प्रश्न है, टेरोसोर के कौन से अंग पंखों में बदल गए? जो टेरोसोर पक्षी था जिसको अर्ध पक्षी भी कहते हैं उसके जो कौन सा अंग था जो पंखों के रूप में बदल गया? तो टेरोसोर के जो अगले पांव थे, जो टेरोसोर के आगे वाले पैर थे वो पंखों में बदल गए। उसके अगले पैर किसके रूप में बदल गए? पंखों के रूप में। पांचवा प्रश्न, उछलकर कुछ दूर गति करने वाले जीव को क्या नाम दिया गया है? जो उछलकर कुछ दूर पर गति करते उन जीवों को क्या कहा गया है? टेरोसोर। आगे आपके लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, इसके अंदर है आपको निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में हमें देने हैं। पहला प्रश्न, किसी प्राचीन जीव की गति के विषय में किस बात से पता चलता है? कि कोई प्राचीन जीव है उसकी गति के विषय में हमें किससे पता चलता है? तो उत्तर आएगा किसी प्राचीन जीव की गति के विषय में उसकी अस्थि पंजर की आकृति से पता चलता है। कि उसकी जो अस्थि पंजर है उसकी क्या आकृति है, उससे हमें उसकी गति के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न, किसी प्राचीन जीव के भोजन के विषय में किस बात से पता चलता है? कि जो कोई प्राचीन जीव है उसके भोजन के बारे में किस चीज से पता चलता है? तो किसी प्राचीन जीव के भोजन के विषय में उनके अवशेषों से
देने लगा। तो पक्षियों के विकास के बारे में बताया गया है कि जो उनके शरीर का विकास, उनकी आवश्यकता और उनकी जो भोजन प्राप्त करने की क्षमता थी, उसी के अनुसार होता गया कि जो पहले उदाहरण के रूप में जो पहले आदि पक्षी थे, उनके मुख में दांत होते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने उड़ने की क्षमता का विकास किया तो उनके दांत हो गए, वो लुप्त होते चले गए और वो क्या हो गए, हल्के हो गए उनका शरीर, और इसी कारण उनको उड़ने में सहायता देने लगा। टेरोसोर से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो टेरोसोर क्या है? लगभग 10-12 करोड़ वर्ष पूर्व रहने वाले कुछ ऐसे जीव थे जो कि वायु में ऊंचा उछलकर तेजी से गति कर लेते थे, यद्यपि यह गति बहुत छोटी दूरी की होती थी। ऐसे जीवों को टेरोसोर नाम दिया गया। उड़ने की क्षमता ने उन्हें कीट पतंगों को अपना भोजन बनाने में समर्थ कर दिया। हम इन्हें अर्धपक्षी भी मान सकते हैं। टेरोसोर के बारे में बताया गया है कि आज से लगभग 10-12 करोड़ वर्ष पहले जो रहने वाले जीव थे, जो वायु में थोड़ा सा उछलकर कुछ दूरी पर गति करते थे, और यद्यपि ये गति थी वो बहुत कम दूरी की होती थी, ज्यादा दूर वो गति नहीं कर पाते थे, लेकिन उनने भी क्या करा कि उन्होंने उड़ने की क्षमता नहीं, कि वो जब उड़ने की कोशिश करने लगे तो कीट पतंगे उनका भोजन बन जाते थे। इसी कारण से उन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश करी, उड़ने की कोशिश की, और उन्हें उड़ने में समर्थ बना दिया, और उनको अर्धपक्षी भी हम मान सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, पक्षी हमारे मित्र है, कैसे? सही उत्तर दीजिए कि पक्षी हमारे मित्र है। उत्तर है, पक्षी देखने में भले ही कैसे हो, उनका कार्य सदैव हमारे हित के लिए होता है। उदाहरण पे चित्त, कोय तथा चील नर पशुओं के शवों को कुछ ही समय में चट कर जाते हैं। इसके फलस्वरूप हमें दुर्गंध तथा रोग फैलाने वाले तत्वों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि तो पक्षी हमारे मित्र किस प्रकार से है कि देखने में पक्षी चाहे कैसे भी, कुछ पक्षी होते हैं सुंदर होते हैं, कुछ होते हैं जो सुंदर नहीं होते, जैसे गिद्ध है, कौवा है, चील है, लेकिन ये हमारे मित्र हैं। कैसे कि ये मृत पशु होते हैं, इनको कुछ ही समय में खाकर नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, और इसके कारण क्या हो जाता है, जो उनके कारण जो मरने वाले पशुओं की जो बदबू है, दुर्गंध है, या उनसे जो रोग फैलने वाले हैं, उन सभी से भी छुटकारा आगे बढ़ता। पार्ट 4 ई श्रीधरन मेट्रोमैन। इसके अंदर पहला प्रश्न है, श्री इलेक्ट्रुअल लापिन श्रीधरन का जन्म किस वर्ष में हुआ था? उत्तर आएगा इसका 12 जून 1932 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न, श्रीधरन दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कब नियुक्त हुए? सन 2005 में। कब नियुक्त हुए? 2005 में। जीपी वैरियर कौन थे? जीपी वैरियर कौन थे? उनके बॉस थे, ई श्रीधरन के बॉस थे। श्रीधरन को मीडिया में किस नाम से जाना जाता था? मीडिया में उनको किस नाम से जाना जाता था? मेट्रोमैन के नाम से। सही विकल्प के प्रश्न है, ई श्रीधरन का जन्म केरल राज्य के किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था? पलक्कड़ जिले में। दूसरा प्रश्न, 1963 ईस्वी में समुद्री तूफान से टूटे जिस पुल को ई श्रीधरन ने बनवाया है, वह हमें बताना है कि वो पुल कहाँ पर है? वह रामेश्वरम में। तीसरा प्रश्न, भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा प्रदान की गई थी, कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में। ई श्रीधरन ने निर्माणाधीन एक पुल के गिर जाने के कारण त्यागपत्र दिया था। कब दिया था उन्होंने त्यागपत्र? 2009 में। आगे अतिलघु के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, ई श्रीधरन का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ? ई श्रीधरन का जन्म भारत के केरल राज्य में हुआ। दूसरा प्रश्न, कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति ई श्रीधरन का सहपाठी था? कौन प्रसिद्ध व्यक्ति थे? भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त T.N. सेन, जो थे ई श्रीधरन के सहपाठी थे। श्रीधरन की नियुक्ति रेलवे में कब हुई? श्रीधरन की नियुक्ति हुई 1954 ईस्वी
हुआ। तो कोलकाता में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 1984 में प्रारंभ हुआ। स्वतंत्र भारत का पहला समुद्री जहाज रानी पद्मिनी किस शिपयार्ड में बनाया गया? तो कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया। स्वतंत्र भारत का पहला समुद्री जहाज कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया। आगे है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में बेटा। पहला प्रश्न, ई श्रीधरन के विचारों को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए कि उनके जो विचार है उनको बताना है। तो उनके क्या क्या विचार है? पहला है मनुष्य को आरंभिक जीवन में ही परिश्रम, समय का पालन तथा ईमानदारी के गुण मिल जाते हैं। दूसरा, अपने काम में हमें जी जान डाल देनी चाहिए। तीसरा, सभी समय का पाबंद रहकर कार्य करना चाहिए। चौथा, असफलताओं को सफलता में बदलने का प्रयास करना चाहिए। और पांचवा है अपने परिवार को सदैव उचित समय देना चाहिए। तो उनके 5 विचार हैं कि हमें परिश्रम, समय का पालन, ईमानदारी गुण बचपन में मिल जाते हैं, हमें अपने काम में जी जान डाल देनी चाहिए, सदैव समय का पाबंद रहना चाहिए, असफलताओं से ही सफलता में बदलने का प्रयास करना चाहिए तथा अपने परिवार को उचित समय देना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, ई श्रीधरन की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उनकी चरित्र की विशेषता बतानी है। तो उनके ई श्रीधरन के अनेक चारित्रिक विशेषताएं हैं। पहला कि ई श्रीधरन एक परिश्रमी तथा ईमानदार व्यक्ति थे। दूसरा, वे हमेशा अपना काम समय पर पूरा करते थे। तीसरा, वे धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे तथा अपने परिवार को भी उचित समय देते थे। चौथा है, वे कभी भी असफलताओं से घबराते नहीं थे बल्कि कड़ा परिश्रम करके असफलताओं को सफलता में बदलने का प्रयास करते थे। तीसरा प्रश्न है, ई श्रीधरन ने युवा पीढ़ी को क्या संदेश दिया? विस्तारपूर्वक लिखिए। ई श्रीधरन ने युवा पीढ़ी को क्या संदेश दिया है? ई श्रीधरन ने युवा पीढ़ी को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 4 अनिवार्य गुण बताए हैं। कि युवा पीढ़ी को 4 अनिवार्य गुण बताए हैं। ये 4 अनिवार्य गुण हैं: समय का पालन, ईमानदारी, अपने कार्य में सिद्धहस्त होना तथा अच्छा स्वास्थ्य। ये 4 गुण उन्होंने युवा पीढ़ी को बताए हैं। यदि आज के युवक इन गुणों को अपना लें तो मुझे विश्वास है कि भारत का भविष्य अत्यंत ही उज्जवल होगा। आगे हमारा बेटा पाठ 5 स्वच्छता वार्तालाप। ये जो पाठ है वो वार्तालाप के रूप में है कि किस प्रकार से एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, जो साफ सफाई रखता है, वो किस प्रकार से सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, सभी को अच्छा लगता है। तो इसमें पहला प्रश्न है, जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो सबसे पहला हमारा ध्यान किस ओर जाता है? जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो सबसे पहला ध्यान हमारा कहाँ जाता है? तो सबसे पहले व्यक्ति के वस्त्रों तथा शरीर की ओर जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले व्यक्ति के वस्त्रों और शरीर की ओर जाता है। दूसरा प्रश्न, स्नान शब्द स्नान क्रिया की कौन सी संज्ञा का भेद है? क्रिया का भाववाचक संज्ञा का। कौन सा काल है? समय स्नान करने का सर्वोत्तम काल है। कि कौन सा समय सर्वोत्तम होता है स्नान करने के लिए? तो आएगा प्रातःकाल। कौन सा? प्रातःकाल।
हाँ